Hello, once again, welcome to USTM IS Academy. This side, your mentor, Apurva Nandi. So again, I have brought you another video of the series Indian Economic Development, where we have did a discussion on why India chose to be a mixed economy on the last video. Before that, we have seen Indian economy on the eve of independence. Then we are trying to progress very gradually and trying to maintain the chronology of the developmental series. So here in this video we will discuss about the land reforms which was done during that time. Now, what do we mean by land reform? The word reform means something which is changed drastically. Reform does not only means change, it means a drastic change, it means a structural change. Such type of changes are known as a reform. So when we talk about the land reform, definitely we are meaning that in Indian economy, the very essential part, that is agriculture, where land is the utmost very important thing, has structurally changed. How the land has changed? Not the land physically, but the use of land, the state's role on the land has changed. So we will discuss this in today's video, that is the agrarian transformation and land reforms policy in India. So first of all, let's discuss the baseline. Why was the need for such a big reform in Indian agriculture? The background was that when British left India, India got its independence, Indian agriculture was not at its golden stage that it used to be before the arrival of the Europeans. So Indian agriculture was very much exploited, not only by British but also by the Indians also. So we will discuss this in our today's video only. So by the exploitation of the people, whether it is the Indian, whether they are the British, they have exploited the land or the Indian agriculture overall. So when India got independence, got such a agriculture which is very much dilapidated, so that brought or ought a very drastic change. The second thing is the catalyst. It is the who were the people who actually they exploited Indian agriculture. You can consider them to be the zamindars. You can consider them to be the colonial masters in the form of Mahalwars or by the introduction of the Ryotwari system. And ultimately the mandate is the reform itself. कि जो एक्सप्लोटेशन हुआ, उस एक्सप्लोटेशन की वजह से रिफॉर्म आना था, वो रिफॉर्म को ही हम यहाँ पर मैंडेट कह रहे हैं. तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे. सो नेक्स्ट थिंग, पहले हम इन तीन चीजों का, जैसे कि जमींदारी सिस्टम, रियाटवारी सिस्टम और मालवारी सिस्टम, इनका बेसिक डिफरेंसेस पता करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंस से पहले जो सिमिलैरिटी है वो क्या है? ये तीनों ही थे ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाने वाले लैंड टेन्योर सिस्टम. जैसे कि जमींदारी सिस्टम, इट वाज द मेथड थ्रू विच the British used to collect tax from the zamindars. That means a zamindar, it was the intermediary. A zamindars used to have a concentrated amount of land, और उनके जमीन के ऊपर जो फार्मर्स काम कर रहे थे वो थे मेयर टेनेंट्स. तो जब ब्रिटिश ने जमींदार्स की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया, तब जमींदार्स ने भी फार्मर्स को या फिर जो टीलर्स है उनको एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया. कि मान लो कि जस्ट फॉर इंस्टेंस कि जमींदार से अगर पहले 1 रुपया लेते थे एज अ टैक्स फ्रॉम द टीलर्स, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम वो टैक्स 1 रुपये से बढ़ के 2 रुपया 3 रुपया तक हो गया था. ठीक है. नाउ द सेकंड वन, लेट्स सी, रियाटवारी सिस्टम बाद में देखते, पहले माहलवारी सिस्टम. माहलवारी सिस्टम में क्या है कि एक गांव को एक सिलेक्ट कर लिया जाता है और वहां पर किसी एक इंसान को या फिर किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर दिया जाता है कि उनको टारगेट दे दिया जाता है कि उस गांव में तुम सालाना इतना सम ऑफ अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को तुम क्या करोगे, जमा करोगे. सो दैट पर्सन इज सेड टू बी द महलवार, और वो जो सिस्टम है वो था महलवारी सिस्टम. तो फिर से हम देखते हैं जमींदारी सिस्टम में कौन है, वो सिंगल जमींदार ब्रिटिश जमींदार से टैक्स लेगा और जमींदार
अपने फार्मर्स से वो पैसा एक्सट्रैक्ट करेगा। महलवार क्या है? वो महलवारी एक सिस्टम बना दिया गया है, थोड़ा सा फॉर्मल है जमींदारी सिस्टम से, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो महलवार से टैक्स लेगा, उस विलेज ग्रुप से वो टैक्स लेगा, और वो विलेज ग्रुप क्या करेगा? उस पूरे गांव से वो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो वो तो इंटरमीडियरी थे, बट जो रियोटवारी सिस्टम है यहाँ पर इंटरमीडियरी है ही नहीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडियन फार्मर से टैक्स लेंगे। दैट मीन्स द फार्मर्स विल डायरेक्टली पे द टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो वट एवर द डिफरेंस इज, ये तीनों ही जो सिस्टम है ये तीनों ही बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था इंडियन एग्रीकल्चर में। अभी आप सोचो, आप इंडियन एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, आपका पूरा इनकम, आपका पूरा लाइवलीहुड एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, पर अगर आप जो ईल्ड आप कल्टीवेट कर रहे हो, पूरा का पूरा ईल्ड या फिर उसके 50% आप एज अ टैक्स पे कर रहे हो, सो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट एनी मोटिवेशन फॉर द एग्रीकल्चर। उसके साथ साथ कुछ पॉइंट में ये भी ऐड करूंगा कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि इंडियन फार्मर्स को ये मोटिवेट तो मैं नहीं बोलूंगा, सॉरी, फोर्स किया गया है कि वो फूड क्रॉप्स से शिफ्ट होकर वो कैश क्रॉप्स कल्टीवेट करे, जिसका यूरोप में डिमांड ज्यादा था, जैसे कि शुगर केन, जूट, टोबैको, इंडिगो एटसेट्रा। कि उस टाइम जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रीज वेर वर्किंग, मॉडर्न इंडस्ट्रीज वेर वर्किंग इन यूरोप, उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए था तो वो इंडिया से जाता था। तो जो सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ एग्रीकल्चर था इंडियन फार्मर्स का, कि जो हम उगा रहे हैं वही हम कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर कुछ सरप्लस है वो हम मार्केट में बेच रहे थे, इतना सुंदर सा सिस्टम था। बट ड्यू टू दिस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम और कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप, इंडियन एग्रीकल्चर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, और इतना डाउनफॉल हुआ कि एग्रीकल्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और उसी तरह का एग्रीकल्चर इंडियन गवर्नमेंट को इन द ईयर 1947 मिला। नेक्स्ट कि अभी यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल जो आपके एग्जाम रिलेटेड है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंट्स द एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमिटी हेडेड बाय जेसी कुमारप्पा टू स्टडी द प्रिवेलिंग एग्रेरियन रिलेशंस, कि उस टाइम इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या रिकमेंडेशन सजेशंस दिए जा सकते हैं, उसके लिए कमिटी गठन किया गया। क्या नाम था कमिटी का? द कमिटी वाज हेडेड बाय जेसी कुमारप्पा। फिर स्टेट ने कुछ एक्शंस ली है, जैसे कि लैंड रिफॉर्म वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टेट सब्जेक्ट, कि जैसे कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे कि वहां पर 3 लिस्ट है, एक है सेंट्रल लिस्ट, सेकंड वन इज द स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज द कॉन्करेंट लिस्ट। तो लैंड रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी मैटर है वो स्टेट के अंडर दिया गया था, गाइडेड बाय सेंट्रल फ्रेमवर्क्स एंड 5-year प्लान्स टू एलिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन एंड रिमूव इम्पेडिमेंट्स टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो स्टेट ने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ पॉलिसीज बनाए हैं कि जो भी एनोमलीज थे उस टाइम उसको हटाया जाए। और क्या क्या थे प्रॉब्लम तो ऑलरेडी डिस्कस किया, उस प्रॉब्लम को कैसे हटाया गया वो हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसके स्टेट के साथ साथ ऑन द अदर हैंड देयर वाज कम्युनिटी लेड एक्शन ऑल्सो, कि इंडियन एग्रीकल्चर को रिफॉर्म या फिर एक गुड चेंज देने के लिए सिर्फ स्टेट ने भी वर्क नहीं किया, कम्युनिटी ने, लोगों ने मिलकर भी काम किया है। तो लेट्स सी नेक्स्ट इज कि what was the purpose of this land reform? The purpose is very much common, that is social justice, कि social justice ensure करना है कि इंडिया में एक बहुत ही significant amount of the population is associated with the Indian agriculture, इसीलिए हम इंडियन एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। तो उनको भी एक डिसेंट लाइफस्टाइल मिले, एक डिसेंट इनकम मिले, उसके लिए लैंड रिफॉर्म किया गया है। फिर टेनेंसी रिफॉर्म, कि अगर किसी का अपना लैंड नहीं है तो वो अगर एज अ टेनेंट किसी लैंड पे एग्रीकल्चर कर रहा है तो वहां पर भी रिफॉर्म्स लाए गए हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग विद इन 2 minutes. Then it is about the poverty alleviation, that has linkage with social justice, productivity to increase the yield of Indian agriculture, and lastly consolidation of land, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें हम बाद में आते हैं, पहले हम let's see the very in 3 important pillars of the land reform. पूरा का पूरा जो land reform है ये 3 pillars के ऊपर based है। The first is abolition of intermediaries. जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब रिफॉर्म हुआ, सबसे पहला काम जो हुआ है by the Indian government और the state government was the abolition of intermediaries, कि जमींदारी सिस्टम को हटाया गया,
महलवारी सिस्टम को हटाया गया, कि जो भी इंटरमीडिएरीज थे उनको हटा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, टेनेंसी रिफॉर्म्स। टेनेंसी रिफॉर्म में कि जो फार्मर्स अपना लैंड वो उनका नहीं है, वो अगर किसी दूसरे के लैंड पे, किसी लैंडलॉर्ड के लैंड पे अगर वो एग्रीकल्चर कर रहे, तो उनको क्या सिक्योरिटी दिया गया है, तो उनके लिए भी सिक्योर किया गया है कि द टेनेंसी, द एग्रीमेंट विल बी ऑन पेन एंड पेपर, मेयर जस्ट ऑरली। कागज और कलम में उनका एग्रीमेंट बनेगा, और जो टेनेंट है, सॉरी, जो लैंडलॉर्ड है, वो एक इनडिस्क्रिमिनेट अमाउंट एज अ रेंट चार्ज नहीं कर सकता, कि जो मर्जी वो रेंट चार्ज कर रहा है फार्मर से, वो नहीं कर सकते। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है कि जो एग्रीमेंट के अंदर जब लैंड दिया जाएगा, लीज में दिया जाएगा फार्मर्स को, वो टाइम कंप्लीशन से पहले वो लैंडलॉर्ड वो लैंड वापस नहीं भी ले सकता है। जब तक वो पर्पस फार्मर का खत्म नहीं होगा, कल्टीवेशन खत्म नहीं होगा, हार्वेस्टिंग नहीं होगा, उनका इनकम जनरेट नहीं हुआ, तब तक वो लैंडलॉर्ड अपना लैंड वापस नहीं कर सकता। नेक्स्ट, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कि जमींदारी सिस्टम को जब हटाया गया तो जो एक्स्ट्रा लैंड था वो कहाँ जाएगा, तो जमींदारी से, चलो नाम जमींदारी हट गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, यू कैन नॉट consider yourself to be a zamindar, you cannot use the term zamindar as a title, as a status title। तो लैंड सीलिंग लगाए गए कि एक स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स पे, कुछ स्टेट्स ने अप्लाई किया है, कुछ स्टेट्स ने अप्लाई नहीं किया था, कि एक लिमिट से ज्यादा लैंड आप नहीं रख सकते। यू कैन नॉट डू कंसंट्रेशन ऑफ लैंड। अगर आपके पास ज्यादा लैंड है, आप उसको लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, इस डिस्ट्रीब्यूट के लिए लैंडलॉर्ड्स को कंपेंसेशन दिया गया था, और वो कंपेंसेशन कौन डिटरमाइन किया था, वो कंपेंसेशन वाज डिटरमाइंड बाय द स्टेट इटसेल्फ। उसके साथ अभी हम ये वाला चीज देखते हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी लेड एक्शन जो हमने बोला था, कि सिर्फ कंपेंसेशन लेके ही जो दिया गया है वो बात नहीं है। लैंड वाज आल्सो ग्रांटेड टू द लैंडलेस फार्मर्स थ्रू सम मूवमेंट्स, जैसे कि द भूदान मूवमेंट या फिर ग्राम दान मूवमेंट। ओके, विच वॉज द आइडिया ऑफ आचार्य विनोबा भावे, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, द ग्रासरूट विजन ऑफ आचार्य विनोबा भावे विच वॉज लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश, he appealed directly to land owing classes to voluntarily donate surplus land to the poor, कि जो गरीब है, गरीब फार्मर्स है, उनको आप अपना लैंड डोनेट कर दो, ताकि उनका फ्यूचर आगे बढ़े और भारत का भविष्य सुधरे। Brought the crisis of landlessness to the forefront of national public discourse. The evolution of the movement means यहाँ पर हम ग्रामदान मूवमेंट जो है, it was sought to establish self-governing, self-reliant village communities where land and resources were collectively owned and managed। मतलब एक पूरा का पूरा विलेज, वो अपना लैंड, वो विलेज खुद मैनेज करेगा। वहाँ विलेज में जो लोग हैं वो कैसे इकोनॉमिकली, सोशियो इकोनॉमिकली आगे बढ़े, वो विलेज के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो डिसाइड करते थे। तो हमारा हो गया एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, टेनेंसी रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। इसके साथ साथ हम कुछ और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया, कि इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि अगर आप कुछ थोड़ा सा क्वांटिटी आप कल्टीवेट कर रहे हो और अगर आप उसको मार्केट में बेचने के लिए जाओ, तो जो प्रोक्यूरर है, जो प्रोक्यूर करेगा, वो बोलेगा इतने से हमारा कुछ होगा नहीं, तो ये हम नहीं खरीदेंगे, या फिर उसका प्राइस आपको कम मिलेगा। पर अगर मान लो फूड सिक्योरिटी के तहत अगर हमें देखें कि जहाँ पर इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाज पुअर, वो अपना खाना खुद खरीद के नहीं खा सकते उस टाइम, तो उनके लिए क्या चाहिए, उनको फ्री में राशन देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप एक गांव मिलके एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाइए। अगर आप चावल उगा रहे हैं तो आप पूरा गांव चावल उगाइए, आप अगर व्हीट उगा रहे हैं तो आप व्हीट उगाइए। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट क्या करेंगे, प्रोक्योर करेंगे। तो एक साथ मिलके जब प्रोडक्शन किया जाता है उसको और सेल किया जाता है, उसको कहा जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट की वजह से भी ये कोऑपरेटिव फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, उसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं अबाउट समथिंग कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड।
कंसोलिडेशन ऑफ लैंड क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर में वो पहले भी था और अभी भी है वो प्रॉब्लम कि जो फार्मर्स के जो लैंड है वो स्मॉल है, छोटे छोटे एरिया का लैंड है, और वो फ्रेगमेंटेड है कि यहाँ पर एक जमीन है एक फार्मर का और थोड़ी सी दूर जाकर उसका और एक जमीन है, और थोड़ा दूर जाओगे तो और एक लैंड वहां पर है। तब उस फार्मर को उस लैंड पे कल्टीवेट करना मतलब दिक्कतदायक उसका होता है, क्योंकि एक ही लैंड में आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, रिसोर्स भी आपको कम चाहिए, पर 3 लैंड है तो आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, टाइम आप इक्वली डिवोट नहीं कर पा रहे हो, रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए कि अगर आपका एक ही बड़ा सा पीस ऑफ लैंड है तो आप एक ही इरिगेशन फैसिलिटी का बंदोबस्त करोगे, अगर आपका छोटे छोटे 3 लैंड है तो आपको 3 बंदोबस्त करना होगा इरिगेशन का, तो फार्मर का कॉस्ट भी ज़्यादा लगता था उस टाइम। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक्सचेंज योर लैंड, कि आपका जो बगल वाला लैंड है वो आप उनसे ले लीजिए और आपका जो दूर लैंड है वो आप उनको दे दीजिए। तो उसको कहा जाता था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, कि छोटे छोटे टुकड़े समेट के एक बड़ा सा पीस बना लो, या फिर आप उसको कह सकते हो डीफ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड ऑल्सो। तो वो था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, तो वो भी लैंड रिफॉर्म में सजेस्ट किया गया था। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा माइन्यूटली देखते हैं कि एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी की लेजिस्लेटिव इंटेंट, मतलब ये लॉ पास किए गए थे। जमींदारी एबोलिशन एक्ट, इट एबोलिश्ड ऑल द राइट्स ऑफ जमींदार्स एंड जागीरदार्स, बैंड फर्दर लैंड एक्विजिशन, देन इट क्रिएटेड फॉर्मन लैंड रिकॉर्ड्स। अगर आपके नाम, आप अगर लैंड ले रहे हो तो आपके नाम पे वो लैंड होगा, ऐसे ही नहीं कि हाँ ये तुम्हारा लैंड है ले लो, नहीं, आपके नाम पे प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड होगा। और वो कौन देगा और कौन मेंटेन करेगा? वो अपना स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करेगा। फ्रीड द वास्ट मास ऑफ पीजेंट्री फ्रॉम इलीगल exactions in cash kind and services, उनको ओनरशिप दे दिया गया। नेक्स्ट टेंडेंसी रिफॉर्म दैट वी हैव डिस्कस्ड कि फेयर रेंट कलेक्शन, इनडिस्क्रिमिनेट रेंट कलेक्शन नहीं हो सकता। सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर की जब मर्जी लैंडलॉर्ड वो अपना लैंड ले लेगा वो भी नहीं हो सकता। एंड ऑल्सो ओनरशिप राइट्स वर ऑल्सो कन्फर्ड, कि अगर फ्यूचर में जाके वो फार्मर उसके पास पैसा आया और वो कंपेंसेशन पे कर सके, so the landlord can also give the land to him for a little compensation. Next, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, तो ये डिफरेंट फेजेस में हुआ है। जैसे 1960 से 1972 तक कुछ प्री रिवाइज सीलिंग लॉज को लागू किया गया। फिर फेज 1972 में सेंट्रल लैंड रिफॉर्म्स कमिटी गठन हुआ और स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने सजेस्ट किए। उसके अंडर कुछ मॉडल एक्ट्स भी बने थे ना। मॉडल एक्ट का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा एक्ट बनाएगा जिसको देखकर बाकी स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करके वैसे अपने स्टेट में लॉ बनाएंगे। एंड 1990 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया अल्टीमेटली बाय इंक्लूडिंग लैंड रिफॉर्म लॉज इन द 9th schedule of the Indian Constitution, bearing the jurisdiction of civil courts to prevent endless legal challenges. Okay, so that was the ultimate thing that was under this topic. So stay tuned to our YouTube channel and other social media pages. So hope you are liking our concepts. So अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है तो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हो। और USTM IAS Academy से अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो do write to us. So from my side, God bless you and thank you.